Hi, hello everyone. Hi, this is Deepak here, guys. Welcome to my new batch, which is completely dedicated to the vocabulary part only. So, सबका स्वागत है, guys. Whosoever is joining today. So, let's see how many of you are joining. How many of you have picked up and chosen me as your mentor, guys. आइए जल्दी आइए. I'm pretty excited for this batch, and let's see what comes out. Or I'll be discussing something with all of you. और जल्दी से जुड़ते हैं. कमेंट सेक्शन एक बार देख लेता हूं दोस्तों मैं. और आइए दोस्तों जल्दी आ जाते हैं. गुड मॉर्निंग है यार, गुड मॉर्निंग है सबको मेरी तरफ से, और गुड आफ्टरनून है सबको मेरी तरफ से. हेलो है सूर्य, आंचल, ठीक है, मौनी, पूजा, गुड, गीता यार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस. प्रेरणा, या गुड टू सी यू हेयर, ठीक है, गुड टू सी यू हेयर. And guys, little bit delay हुआ because there was a meeting going on. अच्छा guys, before I am directly jump to the class. So I really want to ask some questions from all of you. First of all, you just let me know, guys, how should be like the medium of the class. Do you want this class in English or Hindi? There are three medium to discuss class. One is the English, and one is the Hindi. And third one is the bilingual. Okay, third one is the bilingual. So how do you want me to take this entire class? आप लोग कैसे चाहते हैं? और गाइज इसको एक चीज और मैं बोलूंगा, प्लीज, दिस बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. दिस बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. I will be definitely giving, yeah, Madhu, welcome to this batch here. Welcome to this batch. Anas, Prerna, right, welcome everyone. Thank you so much for choosing me as your mentor, guys. चलिए मुझे बताइए, how do you want this? Like, because I want now you guys to improve your overall language, overall skills. I don't want you guys to prepare for just for a particular exam. मैं चाहता नहीं हूं कि आप सिर्फ कोई एग्जाम को टारगेट करके मेरे साथ पढ़े यहाँ पे. The purpose of this batch is to improve your overall confidence of English language, to improve the vast vocabulary, to have very very immense knowledge or the profound knowledge of vocabulary. और मैं चाहता हूं कि इसको चाहे मुझे 4 महीने लगे, 5 लगे, 6 महीने लगे, बट आई शुड हेल्प यू आउट. मेरे को ये बताइए हाउ मच. यस, आई कैन सी द मैसेज. नीरू स्वागत है, निधि, संतोष, रूबी, ठीक है. और इसको आप एक इंट्रोडक्टरी क्लास मानिए. आज हल्का पढ़ाई करेंगे and we'll be talking a lot about how should we progress, how should we move forward with this particular batch, right? So guys, one more question. Do you want 2 classes or 3 classes in a week? जितना आप देखिए, because you will be preparing for n number of exams as well. So I don't want that you are taking extra burden on you. If you want 2 classes in a week, I'm pretty comfortable with that. If you want 3 classes in a week, I'm pretty comfortable with that. So how many classes do you want from my side? Okay, how many classes do you want? Acha, 90% will be the English, and I will speak very slow and simple English, right? I will speak very simple and slow English so that everybody gets the idea of it. जितनी भी vocabs आएंगी, we can also like learn those vocab in Hindi, but I would request everyone not to rely so much on Hindi, guys. हमारे साथ दिक्कत क्यों हुई, हम why we are not able to understand English language? There was only one reason, that we rely so much on Hindi. Let's have the acquisition of English language with this vocabulary batch, okay? I want you to have the assimilation. You need to imbibe yourself into English. मैं चाहता हूं आपको कि आप अपने आप को इंग्लिश में डुबो दें, आप अपने आप को इंग्लिश में इम्बाइब कर ले. देखिए यार, 2 क्लासेस में बस यही होगा कि बैच बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट? सो द बैच विल बी क्वाइट लेंदी. अच्छा गाइज, ऐसा होगा, हम वीक में कभी 3 ले लेंगे, कभी 2 ले लेंगे, राइट? ऐसे करके कर लेंगे. तो आपको स्केड्यूल होगा, यू नीड टू चेक दी स्केड्यूल. देर आर चांसेस कि हम अल्टरनेट सैटरडे पे क्लास लेंगे, राइट? But Tuesday and Thursday there has to be a class. We will be taking class. और बताइए, class has to be for 1 hour or 1.5 hour. How do you want to? Or I'm taking your opinion on that because I want you guys to be. Sir, आपका comprehension batch? Yeah, Shubhi, there is no particular comprehension batch. I don't believe so. We should go for comprehension right now.
After this, I'll be going with interview and the PD batch. You can see the personality development and there are a lot of others we'll be talking about. तो उसके अंदर हम बातें करेंगे. ठीक है guys, in a like a month you will get ample classes. देखो एक चीज और मैं बता देता हूं. One thing I want to tell you, I will take back to back test, right? ऐसा नहीं है कि I will be leaving you कि यार मैंने पढ़ा दिया and just go back to your home. After certain period of time I'll be conducting back to back test, ठीक है, and you will have to give me the reply so that I can understand you guys are revising. जितनी भी चीजें मैं आपको कराऊंगा, whatever we are doing guys, so we have to revise at least 2 to 3 times. vocab को रिवीजन देना गाइस, ठीक है सुरजीत यार. और एक और देखो, एक चीज और है गाइस, I will not entertain even a single हिंदी मैसेज. अगर आप इसमें एक भी हिंदी मैसेज आएगा तो मैं उसको कभी रिप्लाई नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना. आई विल नॉट टॉलरेट इवन अ सिंगल हिंदी मैसेज. सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, द वे वी आर आर हैबिचुअल ऑफ राइटिंग ऑल दी English kind of a language, please try to avoid doing all those stuff in this batch. I will request everyone, and that's a request to everyone, please do not write even a single Hindi message. I will completely ignore your message if you are writing in Hindi, right? I am not saying I will reply to all the messages, but I will not read at all. I will not read at all if your message is in Hindi. My purpose of this batch is not to improve your vocabulary part or give you some kind of rectification. My purpose of this batch is to give you a holistic approach of the language, or to broaden your horizon of English language. आपका एक thought process बड़ा होना चाहिए. उसके लिए I will keep on sharing lot of tips with you. Initially we'll be doing very easy vocabs. Later on we'll increase the level of the vocabulary, right? At the first 4-5 classes we'll be working on the roots. We will be working on how to make words with the help of certain small words. So that will be the agenda for the first 4-5 classes. Or I am emotionally attached to this batch. Okay, so I am emotionally and professionally attached to this batch. So my expectations from all of you will be very immense or huge. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. Yes sir, I will try my best to write message in English, but if you see any, यार I don't look for mistakes. I don't look for mistakes. I am not a fault finder. I am not censorious. ठीक है, I am not censorious. Censorious क्या होता है? जो नुक्ताचीनी करता है, ठीक है ना. I do not split the hair. I do not split the hair. Split the hair मतलब बाल की क्या बोलते हैं, बाल की खाल निकालना, क्या बोलते हैं उसको, राइट? तो ये ध्यान रखिए. यस हर्षिता वेलकम है. और आज थोड़ा इसको कूल लेके चलना. आज पढ़ाई वढ़ाई की थोड़ी कम उम्मीद रखना, ठीक है. दिस इज फर्स्ट सेशन, तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पहले दिन ही ऐसा है कि बम्बारमेंट कर दिया. चलिए वेलकम है हर्षिता, वर्षा, संतोष, मुक्ता, पूजा, ठीक है. विल वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस. एंड अगेन थैंक यू सो मच guys for believing in me that I can impart my knowledge to all of you. I can help you out in doing something, ठीक है. So we will not be doing rectification, but we'll try to get the, yes, there will be a metamorphism in your life after this batch, and that's my promise to all of you. ये मेरा promise है. The vocabulary problem that you might have seen your entire life, you will definitely get rid of that problem. But मैं दूंगा थोड़ा, आपको revise करना है. Repetition is the mother of skill. Do not expect any silver bullet. Do not expect any, like the panacea from that. Yes, this batch's name is panacea, but do not expect now, something is gonna happen. I'm gonna tap something on your head. Everything will be hunky dory. है ना? मैंने लाइन क्या बोली? I will tap something on your head and everything will be hunky dory. Hunky dory मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए पहला वर्ड शुरू हो गया. hunky dory. हंकी डॉरी का मतलब क्या होता है? लाइफ कभी हंकी डॉरी ना रही है ना रहेगी. हंकी डॉरी मीन्स लाइक यू कैन से फ्री फ्रॉम ट्रबल. फ्री फ्रॉम ट्रबल, राइट? सो मैंने क्या बोला? लाइफ हैज नेवर बीन हंकी डॉरी एंड विल नेवर बी, बट व्हाट वी नीड टू डू इज टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर दी. सिल्वर बुलेट का मतलब होता है मैजिकल सोल्यूशन. कंचन जी, सिल्वर बुलेट का मतलब होता है मैजिकल सोल्यूशन.
So I do not carry any silver bullet with me. So I would not be, like expecting a magical solution. But yes, whatever I have learned, guys, throughout my life, and I just want to tell you, I'm standing in front of you, doesn't mean that I'm very, very, highly scholar kind of a person. There is only one thing with me, that I love this language from the bottom of my heart, and I want to, become the master, or I would say I'm still in the nascent stage, still in the, inchoate stage. So I'm trying to be the master of this language. और मैं इतने सारे वर्ड बोलूंगा, घबराइएगा मत, है ना? आपको मेरे लिए दो काम करना है, ठीक है? यू हैव टू डू 2 जॉब्स फॉर मी. एक तो यार, एक मेरी रिक्वेस्ट है, दैट इज अदर देन वोकैबुलरी. दैट इज अदर देन वोकैबुलरी. लाइफ में खाना खाए ना खाए, यू आर ईटिंग फूड और नॉट, दैट्स योर चॉइस. बट प्लीज 15 to 20 मिनट्स आपको डेली मेरे लिए निकालने हैं. किसके लिए? इसके लिए. और गाइस, अगर आप ये कर देंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आई कैन वाउच फॉर यू गाइस, आई कैन वाउच फॉर यू. सर यू नसीब, आई कैन सी योर कमेंट्स यार. नसीब, आई कैन सी योर कमेंट्स. ठीक है. अच्छा गाइस, देखो 2 टिप्स मैं आपको बता रहा हूं. यू हैव टू फॉलो 6 months विदाउट फेल. 2 tips, 6 months without fail, और आई एम आस्किंग ओनली फॉर हाफ एन आवर ऑफ योर लाइफ. 6 महीने, आधा घंटा यू हैव टू डिवोट मी, एंड यू आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. Guys, if you have chosen this batch, there is a strong reason behind it, because otherwise you will not pay anyone. Okay, I am not gonna pay even 50 rupees to anyone. Okay, till the time I don't see the benefit. So the purpose of this batch is not to improve only the vocabulary part, but to improve the overall sense of the language, how we need to understand the words, how we need to use those words in our daily life. मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे क्या है गाइस? पहली रिक्वेस्ट है, 15-20 मिनट्स की आप रीडिंग करेंगे और विदाउट फेल. होली दिवाली मत देख लेना, आज होली है तो चलो छोड़ दूं. विदाउट फेल, ठीक है? सिर्फ 15 मिनट की रीडिंग, और रीडिंग वो करेंगे विच यू कैन अंडरस्टैंड विदाउट डिक्शनरी. आप कभी वो रीडिंग मत करना विच वेर यू नीड टू पिक अप डिक्शनरी. ओके, प्लीज रीड ओनली दो स्टफ विच यू कैन रीड विदाउट डिक्शनरी, एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लेवल. अब आपको अपना लेवल खुद डिसाइड करना है. इफ यू कैन रीड द स्टोरी बुक्स, इफ यू कैन रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, वट एवर वे यू कैन रीड गाइस, है ना? और रीड व्हाट इज अंडर दी सन, जो भी संसार में बना है सब चीज पढ़िए. 15 मिनट से ज्यादा पढ़ के छोड़ दीजिए. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 15 मिनट्स, और आई बिलीव सो इन 15 मिनट्स यू कैन कवर एटलीस्ट 500 लाइन्स. ओके, in 15 minutes you can cover 500 lines. Anuradha, I can see your message. Okay, chaliye, to in 15 minutes we can cover approx 400-500 lines, and that's a daily dose, which is very very important for assimilation. Guys, jitna reading se assimilation aayega, you can never have that assimilation. Assimilation means you are into the language. विजय, मैंने बोला वट एवर यू कैन रीड विदाउट डिक्शनरी, बिकॉज इफ यू रीड समथिंग वेर यू नीड टू पिक अप डिक्शनरी, यू विल नेवर बी एबल टू रीड दैट स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. 15 मिनट तो यार आप कहीं पे भी बैठे हैं, जो आप स्मार्टफोन चलाते हैं उसी में व्हाट यू कैन डे, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप यू कैन डाउनलोड, है ना? इंडियन एक्सप्रेस यू कैन डाउनलोड द स्टोरी बुक, यू कैन डाउनलोड एन नंबर ऑफ स्टफ गाइस, राइट? सो 15 मिनट का रीडिंग आपको मुझे सपोर्ट करना है. इंपॉर्टेंट, हिंदू एडिटोरियल ना पढ़े इफ यू कैन नॉट स्टडी दैट लैंग्वेज, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, राइट? प्लीज रीड. देखो मैं रीडिंग का आपको फंडा बता रहा हूं. प्लीज रीड ओनली दो स्टफ which you can understand 95% without dictionary, and 5% you can derive the meaning by reading those stuff. It means you're not supposed to look the Google, you're not supposed to look the dictionary part, right? तो ये ध्यान रखिएगा. 15 मिनट डेली वोकैब याद करनी है. 15 मिनट जो है गाइस डेली वोकैब. अब इसके अंदर आप 10 से 15 वर्ड ही रखिएगा और उसको 2-3 टाइम रिवाइज करिएगा. ठीक है, 2-3 टाइम रिवाइज करिएगा. 10 वर्ड्स पढ़ने में आई थिंक इट टेक्स 2-3 मिनट्स, एंड व्हेन यू रिवाइज देम 2-3 टाइम्स, ठीक है, व्हेन यू रिवाइज देम 2-3 टाइम्स, सो दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
देखिए, अगर आप ये कहेंगे किस एग्जाम के लिए बेनिफिट है, मैं कहूंगा सबसे पहले दिस क्लास इज बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी कवर्ड अप इन दिस पर्टिकुलर बैच. आपको सारे एग्जाम्स भी कवर होंगे. यू विल कवर ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स. ठीक है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल लुक इन टू ऑल द स्टफ. आई एम गोइंग टू मेक दिस अ वेरी वेरी लेंथी बैच. तो आप इसको यार ये कोर्स मत करना मेरे सामने. प्लीज डू नॉट राइट मेरा कोर्स कब खत्म होगा. दैट आई कैन नॉट डाइजेस्ट एट ऑल. देर इज नो कोर्स गोइंग ऑन. आई एम टीचिंग यू वोकैबुलरी और वेन एवर आई फील कंफर्टेबल, ठीक है, कि अब मैंने इतना पढ़ा दिया, देन द बैच विल कम टू एन एंड. कम से कम हम 50-60 घंटे की तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. Yes, I'm living in Kathmandu, so I read newspapers. So, अरे यार, at today's, the arena of, technology, we don't need newspapers. We don't need anything. You can simply go on Google, can start reading. You can pick up, Indian Express app. You can go with the Times of India app. There are a lot of stuff that you can pick. Right? So, ये please ध्यान रखिएगा. तो कुछ भी करिए, बट मेरे को ये आधा घंटा आप देंगे, तो डेफिनेटली आई विल बी गिविंग, देयर विल बी अ कंप्लीट रीइंबर्समेंट ऑफ द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन माय कोर्स. आपको वो पूरे का, यार देखो एक चीज और ध्यान रखना, ग्रामर इज अ सेपरेट थिंग. ग्रामर इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलर एग्जाम, राइट? And if you want to pick up the grammar batch is already given by me at a very very lower cost of 399, which is a recorded batch. तो वो आप ले सकते हैं, वो अलग issue है. But in this batch, पहली बात तो there are 2-3 things which will not be talking about. पहली चीज तो क्या ये इस कोर्स में काम आएगा? Please do not write this message. This batch is important for even SSC, UPSC, KVS, DSSB, CTET, whatever batch you are picking, or like whatever course you are picking up. This batch is important for all the batches, right? And the secondary thing, I cannot digest your Hindi message. अगर if you write Hindi message, arena मतलब होता है field, ठीक है? Arena मतलब होता है field, right? So request to everyone, please work for your personal growth. Rest of the things are secondary. अगर आपकी growth होती है तो guys exam side में निकल जाते हैं यार, है ना? बहुत बड़ी बात नहीं है. द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग और टारगेटिंग ओनली एग्जाम, सर ये मेरे कोर्स का है कि नहीं है? अरे यार ठीक है, नहीं भी है तो पढ़ लोगे तो दैट इज गुड फॉर यू, राइट? चलिए और देखते हैं क्या है हमारे पास. एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट गाइस बिफोर आई गो एंड डायरेक्टली जंप टू द क्लास? यस, फुटस्टेप्स को बोलते हैं इंग्लिश में वेस्टीज. देखो किसी ने बोला आई विल फॉलो योर फुटस्टेप, इंग्लिश में बोलते हैं आई विल फॉलो योर वेस्टीज. वेस्टीज का मतलब फुटस्टेप्स, ठीक है? अच्छा, ऐसा हो सकता है गाइज इन वन क्लास वी माइट डिस्कस 60 to 80 वर्ड्स, राइट? सो डू नॉट टेक प्रेशर. आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एन नंबर ऑफ वर्ड्स, तो डू नॉट टेक प्रेशर. तो प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है? जस्ट ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. यस गाइज, एनी क्वेश्चन? Sir, I follow you UP TGT read practice classes. I regularly score very good यार संतोष. That's a great thing. अब आते हैं हम लोग, पहला वर्ड शुरू करते हैं. और देखिए guys, the purpose of at least first 4-5 classes is to give you an idea of the English roots. एक वर्ड बनते कैसे हैं, उनके पीछे क्या क्या पर्पस होते हैं, कैसे कैसे वो बनाए जा सकते हैं, right? So we'll try to get the idea of those particular thing. यार ये TGT PGT तो साइड में ही निकल जाएगा दोस्तों when you will cover this holistic batch and everything. So I believe so. I'm gonna give you n number of stuff in this which even I did not disclose in my videos and all that. जब मैं पर्सनल इस बैच में पढ़ा रहा हूं, this is very very important for my own growth as well. Please reply. Can you see my message? Akansha, I can see the message for everyone. Yes, you are the torch bearer and we just follow your vestige. That's a great thing. Yes, you just need to note down the word. There may be a 60 to 80 words in particular class, but do not get, confused or baffled or hesitated by these things. Jitna aapka capacity hai, whatever you feel that you can fill up, and just try to do that much. Okay, ज्यादा मत पढ़िएगा. मैंने आपको 10 वर्ड का एवरेज दिया है, right? So I am going to share n number of vocabulary that
Can I make notebook? Yes, you need to make a notebook, and that, I believe, guys, 50% follow on my head. ये क्या बोला यार कविता देशवाल? आई एम नॉट गेटिंग यू सर. इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल. अब देखो वही बात आ गई, मैंने बोला दिस इज बेनिफिशियल फॉर एवरी सिंगल एग्जाम in in the government preparation. So let me take this batch. I definitely you will gonna see the benefit out of it. और जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे हम क्या क्या काम करेंगे. चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड में हमें सिर्फ ये देखना है वेयर आर द रूट्स. अभी पहला रूट हम पढ़ेंगे फिल. फिल से क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन फ्रेम विद द फिल. तो लेट्स स्टार्ट विद फिल का मतलब गाइस, द फर्स्ट रूट इज फिल. फिल का मतलब इज बेसिकली कॉल्ड दी लवर. फिल इज बेसिकली इज अ लवर. मेटामॉर्फिज्म होता है जब किसी की पूरी दुनिया बदल जाए. यार मैसेज सबका दिख रहा है घनश्याम, मेरे को मैसेज दिख रहा है. चलिए अब कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा मेरा. नाउ लेट्स डू सम स्टडी गाइस. ओके, लेट्स डू सम स्टडी. चलिए कौशिक वेलकम यार वेस्ट बंगाल से. Lover of women, guys. Lover will always have fill, right? There is another root, gynae. Gynae is used for women. Okay, there is another root, anthrope. Guys, you need to pick up the root. You need to pick up the roots only. Do not get worried about the difficulty of the word. Just try to understand the root only. Just try to understand the root only. Just give me 1 minute. हाँ जी, थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूं सो दैट यू कैन गेट द आइडिया. जस्ट गिव मी 1 मिनट. देखिए फर्स्ट रूट इज फिल, और आई टेक इट वेरी इजी और स्लो वे. ओके, एंड आई टेक इन अ वेरी वेरी स्लो मैनर. कुड यू प्लीज क्लियर माई डाउट? विल yes यार, definitely you're going to get the recorded videos. There is no doubt about it. Shubham, you are going to get all the recorded videos. You're not supposed to be live if you don't have time. अगर आपके पास, if you do not have time, you can simply watch recorded videos. There is no problem at all, right? चलिए, Phil is a lover. Phil is a lover of something. Gynae is a women. Gynae word कहीं पे भी आ जाए, that represents the word women. Gynecologist, gynecophobia, right? And there is another word, which is called anthrope. Anthrope is used for mankind. Anthrope is used for mankind, right? There is another root, guys, biblio. We need to write down all these roots. Even if you know the words, we need to write down all these roots. Anthrope is used for mankind, right? There is another word, guys, biblio. Biblio is used for books. Biblio is used for books only, right? बिब्लियो इज यूज फॉर बुक. एसिमिलेशन होता है यार किसी चीज में डूब जाना. विजय पाल, द एसिमिलेशन इज कॉल्ड बेसिकली व्हेन यू आर मिक्सिंग योर सेल्फ इनटू समथिंग. जब आप किसी कल्चर में डूब जाते हो, उसमें समा जाते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. चलिए, बिब्लियोफाइल. बिब्लियो इज यूज फॉर बुक. लॉजी इज यूज फॉर स्टडी. लॉजी इज यूज फॉर study, right? So these are the basic roots which are like in these words. तो अगर मैं अब इनको vocabs बनाना चाहूं तो there are 5 roots that we learned. Phil is lover, gynae is women, anthrope is basically used for mankind, biblio is used for books, logy is used for study. So whenever you get the chance to see all these words, जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे तो इनका मतलब यही होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिब्लियोग्राफी गाइस, थीसिस में कौन कौन सा बुक्स यूज हुआ उसका पूरा एक ब्यौरा देना है ना. सो दैट इज कॉल्ड.
चलिए टेल मी द फर्स्ट वर्ड, बिब्लियोफाइल. फिल का मतलब लवर, बिब्लियो, वी ऑल हैव टू बी बिब्लियोफाइल. वी ऑल हैव टू बी बिब्लियोफाइल मतलब अ लवर ऑफ बुक्स. We all have to be bibliophile means a lover of books. Philology, a lover of study. देखो guys, root से समझो यार. Anybody who is studying this first time, although I have given this information n number of times on the YouTube and other batches as well, but if you are reading this first time, please understand Phil is lover, logy is study. So it's a lover of study. It's a lover of study, right? Philanthropist, philanthropist. Phil का मतलब lover, anthrope मतलब mankind. So the right meaning is lover of mankind. Or try not to cram, try to understand with the help of the root. इन वर्ड्स को क्रैमिंग मत करिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रूट्स. और दीज आर द रेगुलर फीचर ऑफ ऑल द एग्जाम. सोनू सूद फिलैंथ्रोपिस्ट है गाइज, है ना, लवर ऑफ मैनकाइंड, ही हेल्प पीपल आउट अ लॉट एंड ही वाज लाइक एन समैरिटन, यानी जिसने बहुत लोगों की अंधाधुंध मदद करी, बहुत जबरदस्त मदद करी. चलिए फिलोजनिस्ट, अच्छा, लवर ऑफ मैनकाइंड and the philogynist is called basically the lover of women, right? Chaliye, first four word guys we learned, the biblio and the phile. Biblio is books, phil is lover. Philology, phil is, agar main bolu to phil is something which is called basically the lover, and the logy is study, lover of study. Philanthropist is a lover of mankind, the one who helps the, अगर मैं बोलूं तो लोगों की मदद करते हैं, that is called lover of mankind, and philogynist is lover of women. तो अभी हम फिल से ही वर्ड देखेंगे, और लेंदी स्टडी है तो एक ही रूट को पकड़ के I'll be making at least 20 words, 30 words, तो we will try to get more idea about it. Okay, the right answer will be D for Delhi. Right answer will be D for Delhi. चले guys, let's move to the next one. Let's move to the next one, and I want you guys to share your idea about these words, right? I want you guys to share your idea. I'm trying to make you understand the root. I am trying to make you understand all of the roots and everything. So let's see what do we have. जल्दी से बनाइए all four words. चलिए द रेट्रो. रेट्रो का मतलब होता है गाइस पास्ट. रेट्रो का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच हैपेंड इन पास्ट और रिलेटेड टू पास्ट, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रेट्रो सॉन्ग्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रेट्रो सॉन्ग्स. ओके, जैसे रेट्रो से बन जाता है रेट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मचिंतन करिए, अंदर देखिए क्या बातें गलत हुई, कैसे गलत हुई. सो यू नीड टू हैव द रेट्रोस्पेक्शन, राइट? तो रेट्रोस्पेक्शन, स्पेक्ट मतलब होता है देखना, तो रेट्रोस्पेक्शन करना मींस बेसिकली अंदर झांकना, क्या गलत हुआ, राइट? अच्छा गाइस, पर्पस फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 4-5 क्लासेस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड रूट्स. जैसे यहां पर एंग्लो है, व्हाट डू यू मीन बाय एंग्लो? Anglo word is used for the people from England, or you can say the English people. Anglo is basically used for the people from England, and you can say the English people, right? So if I'm Anglophile, guys, when British were ruling our country, some people were following the fashion of British and loved to wear the suit boot and the fashion of the British. So those were called Anglophile, right? एंग्लोफाइल फैशन पसंद है, यानी एंग्लो मतलब एंग्लो जो बोल सकते हैं, दैट इज यूज फॉर ब्रिटिश पीपल. फिलोमैथ, फिल मतलब लवर है, मैथ मतलब लर्निंग ही होता है गाइस. सो इज अ लवर ऑफ लर्निंग. ही इज अ लवर ऑफ लर्निंग, जिसको लर्निंग पसंद हो, जो एक तरीके से पढ़ना बहुत पसंद करे. सो दैट इज कॉल्ड फिलोमैथ.
फिलैटलिस्ट, देखो फिलैटलिस्ट जो होता है गाइस, वैसे जो इसमें एक रूट होता है, फिल तो है ही, और जो ये था ना आपका एटीलिया करके एक वर्ड था उसमें आई थिंक, तो एटीलिया को स्टेम से रिलेटेड करके बोला जाता है। तो फिलैटलिस्ट जो होते हैं वैसे वो लवर ऑफ स्टेम्प बोल लो, या यू कैन से द पीपल हु कलेक्ट स्टेम्प, स्टेम्प कलेक्टर, ये वो लोग होते हैं गाइस, द पीपल हु कलेक्ट स्टेम्प्स, जो क्या करते हैं, स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने फिर से देखा दूसरा वर्ड, अ लवर ऑफ पास्ट। अ लवर ऑफ पास्ट और द पास्ट स्टाइल इज कॉल्ड रेट्रोफाइल, एंड ट्राई इफ पॉसिबल। अभी जो वर्ड है गाइज वो दोज आर मोर रिलेटेड टू द रूट वर्ड्स, बाकी धीरे धीरे हम वो वर्ड्स करेंगे जो हमारे एक रेगुलर यूसेज के भी हैं और बहुत काम भी आते हैं इधर उधर। सो अभी रूट्स पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट रूट इज रेट्रो, सेकंड इज एंग्लो, फिलोमैथ, फिलैटलिस्ट, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, जल्दी से आइए गाइस, जल्दी से। आई होप वॉइस इज क्लियर। इज ऑडियो वीडियो क्लियर टू एवरीवन? Is audio video clear to everyone? My brother is a philatelist. That's very good, yaar Kalyani. Zen is not the lover of Western culture. Zen अलग word है दीपिका, XEN. Zen word जो है that is used for foreigners or strangers. अगर किसी में भी Zen word आ गया, foreigners and the strangers, अमेरिका या यूरोप कंट्री हैज बिकम मोर जेनोफोबिक। अगर मैं यार रेट्रो से याद करो ना नीरू, यू कैन कीप इट फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्शन, पुरानी बातें या एक रेट्रोस्पेक्शन करना, आत्मचिंतन करना। चलिए देखिए, अगर मैं बोलूं अब यूरोप की कंट्री बहुत जेनोफोबिक हो गई हैं। जेनोफोबिक क्या है मतलब? जेन मतलब फॉरनर, फोबिया मतलब फियर। जेन मतलब फॉरनर और फोबिया मतलब फियर। आपने देखा गाइज व्हाट हैपन इन द रीसेंट केस वेयर द टीचर वाज बिहेडेड बिकॉज ही शोड द कार्टून ऑफ द रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, आई एग्री दैट कार्टून शुड नॉट बी मेड, दैट शुड बी हाईली क्रिटिसाइज, बट बिहेडिंग समवन, किलिंग समवन, बिहेड होता है गला काट देना, राइट। सो बिहेडिंग समवन और इसको डीकैपिटेट करना भी बोलते हैं हम। सो बिहेडिंग समवन इज नॉट द राइट सोल्यूशन, राइट। तो अब ऐसे इंसिडेंट से होता क्या है, व्हाट हैपेंस आफ्टर दीज इंसिडेंट्स, कि फ्रांस जैसे जो कंट्री होती है या यूरोप जैसी जो कंट्री होती है, वो इंडियंस या पाकिस्तानी या एशियन लोगों को वीजा ही देना बंद कर देती हैं। वो जेनोफोबिक बन जाती हैं। जेनोफोबिक का मतलब फॉरेनर्स को देखकर जिनको डर लगता हो, फॉरेनर्स को देखकर जिनको क्या लगता हो दोस्तों, डर लगता हो। इंडिया, अगर मैं देखो जेनोफाइल बोलूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जेनोफाइल हो जाएंगे द लवर ऑफ फॉरेनर्स। जेनोफाइल क्या हो जाएंगे दोस्तों, लवर ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं जेनोफोबिक बोलूं तो वन हु इज स्केयर्ड बाय द फॉरेन पीपल, राइट, वन हु इज स्केयर्ड बाय द फॉरेन पीपल। अच्छा देखिए, ये जितने भी जो भी आपको लगता है कि बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ। देखिए दीपिका ने यूज करा है, माई डॉटर इज कैनिनोफाइल, लव्ड इट यार। ये ऐसे वर्ड्स यूज करिए। आई वॉन्ट यू गाइज टू यूज दीज वर्ड्स। जैसे मैंने बोला माई डॉटर इज कैनिनोफाइल, बिल्कुल याद होगा आपको, बहुत जल्दी याद हो जाएगा गाइज। चलिए देखिए, फिल का मतलब तो हम लवर जानते ही है, THEO, THEI और DEI, ये आपको ले जाता है गॉड की तरफ। ये कहां ले जाता है दोस्तों, गॉड की तरफ, ठीक है। आपने वर्ड सुने होंगे दीस्ट, है ना, और ए लगते ही उसका ऑपोजिट बन जाता है एथीस्ट। अब देखिए दीस्ट जो होता है वो बिलीवर होते हैं, यानी गॉड में जो बिलीव करते हैं। और ए का मतलब वी कैन कॉल दिस एज विदाउट। ए इज विदाउट, राइट।
ए क्या होता है दोस्तों? विदाउट, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। तो एथीस्ट क्या हो गया? दोज आर नॉन बिलीवर, दोज आर बेसिकली नॉन बिलीवर, राइट? ये ध्यान रखिएगा। यार एक बार बताइए, साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक बार बता दीजिए, डू वी हैव साउंड और नॉट? आई डोंट नो व्हाई डू पीपल कीप ऑन सेइंग दैट वी डू नॉट हैव साउंड. So I believe everyone getting the idea. Sound और audio video सब ओके है गाइस? साउंड ऑडियो वीडियो सब ओके है? चलिए, सब दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है यार। अच्छा, फिलाडेल्फिया जो है कंट्री भी है, मेरे ख्याल एक स्टेट भी है। कहां पे? अमेरिका में, आई थिंक सो। और उसका पर्पस ही है क्या? भाईचारा दिखाना, फ्रेटर्निटी दिखाना, भाईचारा दिखाना और फ्रेटर्निटी दिखाना। तो फिलाडेल्फी जो है गाइस, वो एक तरीके से कंट्री भी है जो फ्रेटर्निटी को एक लव शो करती है कंट्री में और आपस में लोगों में। चलिए, कैनाइन जो है, कैनाइन रूट है गाइस डॉग्स के लिए। अगर मैं बोलूं कैनाइन जो है वो डॉग्स के लिए रूट है, ये ध्यान रखना। कहीं पर भी if you get the word canny, C-A-N-I, if you get the word canny, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो कैनी साइड, अगर मैं बोलूं कैनी साइड मतलब किसी ने डॉग को मार दिया है गाइस, है ना? कैनिनोफाइल, और आई हैव सीन अ कैनिनोफाइल रिसेंटली हु वाज सर्विंग फूड टू ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रीट डॉग्स. I was really mesmerized to see that girl who was serving food to almost all the street dogs. She was carrying a bag and she was giving food to almost all the street dogs or the strayed animals. क्या मतलब होता है strayed animals? Guys, strayed animals क्या मतलब होता है strayed animals? ये होते हैं आवारा जानवर जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं भटके हुए। स्ट्रेड एनिमल्स क्या होता है ना? स्ट्रे डॉग्स का मतलब क्या है दोस्तों? स्ट्रे डॉग्स का मतलब है जिसको अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं सड़कों पे घूमने वाले, उसको आप बोल सकते हैं। फिलाडेल्फी में कल्याणी, मैंने बोला ना, फिल का मतलब लवर, या एडेल्फ जो है वो भाईचारा को डिनाई करता है, सॉरी भाईचारा को डिनोट करता है। सो फिलाडेल्फी मतलब व्हेन यू आर शोइंग दी फ्रेटर्निटी, और जब आप बहुत ज्यादा भाईचारा दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलाडेल्फी। चलिए, स्ट्रेड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रीट डॉग्स, है ना? एनिमल नॉट ओन्ड बाय एनीवन। चलिए, फिल और हिप्पी, हिप्पो ये जो है ना, वैसे तो हम हिप्पी जो होता है कई बार हम समझते हैं हिपोपोटामस जो होते हैं उससे रिलेटेड है। हिपोपोटामस से रिलेटेड नहीं है। हिप्पिक जो है वो यूज होता है वर्ड हॉर्स के लिए। वैसे हॉर्स के लिए हम इक्वाइन भी यूज करते हैं। हॉर्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इक्वाइन भी यूज करते हैं और हिप्पिक भी यूज करते हैं, राइट? तो फिल हिप्पिक जो है वो हॉर्स के लवर होते हैं। अच्छा देखो, मैं अजीबोगरीब वर्ड क्यों करा रहा हूं, ये सब आप कहोगे यार ये वर्ड कहां आते हैं। गाइस, मैं आपको रूट्स करा रहा हूं, और पहले एक बार आइडिया हो जाए, एक एसिमिलेशन हो जाए, फिर धीरे धीरे आप थोड़ा सा और कहीं ना कहीं बात करेंगे इस पे, ठीक है? यह सवारा कुत्ते आर कॉल्ड स्ट्रे डॉग्स, वेरी गुड। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं। फिलोथिज्म, अ लवर ऑफ गॉड। फिलोथिज्म इज लवर ऑफ गॉड, राइट? फिलाडेल्फिया इज समथिंग विच शोज दी फ्रेटर्निटी और भाईचारा। फिलाडेल्फिया कंट्री का जो पर्पस था, वो पर्पस ही ये था कि लोगों में आपस में एक फ्रेटर्निटी बनी रहे, एक गैदरिंग बनी रहे, एक सॉलिडेरिटी बनी रहे, एक कामारेडरी बनी रहे, राइट? एक दोस्ती बनी रहे, राइट? यस, फिलाडेल्फी उसी से ले सकते हैं गाइस, है ना? तो अगर मैं बोलूं फिलाडेल्फी भाईचारे का संदेश देने वाला एक स्टेट के तौर पे निकल के आता है। मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट स्टेट भी है अमेरिका का, ठीक है? चलिए, कैनिनोफाइल इज अ लवर ऑफ डॉग्स। कैनिनोफाइल इज अ लवर ऑफ डॉग्स। फिली हिप्पिक इज अ लवर ऑफ हॉर्स।
फिलीहिप्पिक इज अ लवर ऑफ हॉर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिल ही कवर कर रहा हूं, देखो अभी सब में फिल 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 आ रहा है। सो आई एम गिविंग यू अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ वन पर्टिकुलर रूट फिल। फिल में और कितने वर्ड आ सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट द आइडिया। चलिए, ट्राई टू शेयर योर आंसर विद मी ऑन दिस। चलिए बनाइए गाइस। नेक्रो जो वर्ड है, नेक्रो वैसे यूज होता है गाइस डेथ के लिए। नेक्रो वर्ड जो है वो यूज होता है डेथ के लिए या डेड बॉडी टाइप में, उसके लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्रोफाइल गाइस, यू नॉर्मली डोंट सी द नेक्रोफाइल्स, है ना। नेक्रो नया नहीं होता रश्मि। नेक्रो मतलब होता है डेथ, या फिर नेक्रो का मतलब होता है बेसिकली जो डेड बॉडी से रिलेटेड हो। अब नेक्रोफाइल, यू हार्डली सी दीज काइंड ऑफ पीपल, बट नेक्रोफाइल इज दैट काइंड ऑफ पीपल हु लव टू ईट दी डेड बॉडी, और कहीं ना कहीं जो डेड बॉडीज खाते हैं और उन्हें उनकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, राइट। सो द वन हु इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द डेड बॉडी एंड लव टू ईट डेड बॉडीज, दैट इज कॉल्ड नेक्रो। अच्छा, नेक्रो याद रखना, बट डेड बॉडी के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना। अ नेक्रोफाइल हु वर्क्स इन अ मॉर्ग, मॉर्ग होते हैं, मॉर्चुरी होती है, तो नेक्रोफाइल उसको बोल सकते हैं गाइस। हीलियो किसके लिए यूज करते हैं, जल्दी से बताइए, हीलियो किसके लिए यूज करते हैं। हीलियो, हीलियो वर्ड किसके लिए आता है गाइस, सन के। हीलियो वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू सन। ठीक है, और हीलियोफाइल आर दोस पीपल, ठीक है, हीलियोफाइल आर दोस पीपल हु विल बी नेक्रोफाइल अदर देन अघोरास। यस, अघोरास इनको बोल सकते हो, अघोरीज बोलते हैं ना, जोम्बीज, यस, अघोरीज, जोम्बीज, सो दोज आर कॉल्ड द नेक्रोफाइल। हीलियो इज रिलेटेड टू, यस, कैनिबल बोल सकते हैं, वेरी नाइस वर्ड कैनिबल। ठीक है ना, कैनिबल ईट्स ह्यूमन फ्लैश, राइट, कैनिबल यू कैन कॉल। और गाइस प्लीज फ्लॉन्ट योर वोकैबुलरी, जितना आपको आता है दिखाओ यार मैसेज में। आई विल लव टू रीड एंड लव टू गेट द आइडिया ऑफ दोज वोकैबुलरी। हीलियोफाइल, जिसको धूप पसंद हो, जादू था, धूप से ही काम चलता था उसका, तो दैट जादू वाज हीलियोफाइल। हीलियोफाइल मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सन। हीलियो वर्ड जो इंग्लिश में आता है उसका मीनिंग है सन। हीलियोफाइल जिसको धूप पसंद हो। फिल का मतलब लवर है, और सोफी जो होता है उसको हम बोलते हैं गाइस विजडम। सोफी इज कॉल्ड बेसिकली दी विजडम इन इंग्लिश। सोफी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम। चंद्रा, वेलकम टू माय ग्रुप यार, वेलकम टू दिस चैनल और वेलकम टू माय पर्टिकुलर कोर्स। और म्यूज क्या होता है, म्यूज आपने सुना है गाइस, एनी वन फ्रॉम लिटरेचर, एनी वन ऑफ यू फ्रॉम लिटरेचर गाइस, ठीक है, एनी वन फ्रॉम द लिटरेचर गाइस, यस नेहा, आई गॉट इट। अ लवर ऑफ म्यूजेस, म्यूज होता है गाइस पोएट्री, और उसके टाइप्स जो होते हैं, या फिर म्यूज को एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो लिटरेचर के अंदर 9 म्यूजेस है, जिनको हम ज्यूस की डॉटर बोलते हैं। ज्यूस जानते हैं गाइस, जैसे यहां पे हमारे इंद्रदेव हैं, तो वैसे ही ज्यूस है ना। ग्रीक लिटरेचर के अंदर ज्यूस जो है वो अच्छे के देवता थे, और उसी के अंदर एक आपका उसका ब्रदर होता है जो बैड के लिए यूज होता है। तो उनकी जो यस गुडेसेस है, ये लिटरेचर के अंदर 9 म्यूजेस है। हर म्यूजेस जो है हर एक पॉलिटिकल स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है, ये ध्यान रखना,
ठीक है, हर जो है हर, और म्यूज का मतलब एक और ध्यान रखिएगा गाइस, म्यूज इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल। म्यूज का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। म्यूज का मतलब इंस्पायरेशन भी होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, देखिए मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, हु इज योर म्यूज? हु इज योर म्यूज? अगर मैंने ये बोला हु इज योर म्यूज, तो इसका मतलब आई एम आस्किंग हु इज योर लाइक नो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। किसका चेहरा देखकर, किसका आप ध्यान करके या किसको फॉलो करके यू फील एनर्जेटिक, राइट? सो म्यूज इज समथिंग विच इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और म्यूज जो है दैट्स अ 9 म्यूजेस दैट वी हैव इन लिटरेचर, तो उसको भी बोलते हैं। यस, एवरी पोएट इन्वोक्स एनी पर्टिकुलर म्यूज बिफोर स्टार्टिंग अ पोएट्री। तो ये ध्यान रखिएगा, फिलो म्यूज क्या हो जाएगा? जो पोएट्री का और इन सब चीज का लवर होता है उसको भी हम फिलो म्यूज बोल सकते हैं, राइट गाइस? तो ये सारे वर्ड्स धीरे धीरे दीपक सर इस, ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच। इफ आई एम योर म्यूज, आई एम मोटिवेटिंग यू और हेल्पिंग यू आउट। नेक्रोफाइल इज मोर रिलेटेड टू डेथ, हीलियो इज मोर रिलेटेड टू सन, सोफी इज रिलेटेड टू विजडम, राइट? अब देखो फिल मैं अलग नहीं ले रहा हूं, फिल तो मैं बता ही चुका हूं। नाउ आई एम एडिंग मोर रूट्स टू दिस, अब इसमें मैं और रूट्स ऐड कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं फिलो म्यूज, फिल मतलब लवर, म्यूज मतलब पोएट्री, और यू कैन से दी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। माई वाइफ इज माई म्यूज, ठीक है, माई वाइफ इज माई म्यूज, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम इज योर म्यूज। सर यू आर माई म्यूज, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू गेट इन टच विद इंग्लिश, दैट्स अ ग्रेट थिंग गाइस। और अब इस बार यार खत्म करनी है इंग्लिश, दैट्स अ प्रॉमिस टू एवरीवन, वी विल फिनिश द लैंग्वेज दिस टाइम, and what you need to do is to just cover up only 10 words on daily basis, and that will be enough for me. 15 minute vocabulary reading, 15 minute daily reading, that's the only thing that I want from your guys, or I don't want 23.5 hours from you, I need only half an hour from you, right? चलिए आ जाते हैं, let's move to the next one. बनाइए गाइस, बनाइए, इसके अंदर देखिए क्या क्या रूट है। Let's start it guys. Hater of new thing, hater of new things. What do we have in this? Now guys, हमने fill देखा. Now you have the hater. It means now the roots is getting changed. और अब आप दूसरे word को देख रहे हैं. Now you are watching the lover. Now will be moved to the like miss. अगर मैं बात करूं guys, miss. If you get the word miss, that is the hater, right? If any word starting with miss, that is the hater of something. चलिए तो अब देखिए गाइस कि इसके अंदर और क्या क्या रूट आए। चारों में मिस है, इट मींस दे ऑल आर हेटर ऑफ समथिंग। चारों में अगर मैं बोलूं दे ऑल आर हेटर ऑफ समथिंग। और एक चीज मैं बता देता हूं कि मैं याद भी आपको करा दूंगा, दैट इज श्योरिटी। Or when I'll take your test of these vocabularies, you will find them quite easy for all of you. You will find them quite easy for all of you, I believe. मैं ऐसे बनाया हुआ है पूरा डिजाइन that you will easily keep these words in your mind. Yes, a second look is required. Yes, Shalini, I can see your comment. ठीक है? देखो मिस का मतलब हेटर, and what do you understand by gynae? Gynae is used for women. Gynae is used for women. Ander is used for man. Ander is used for man. Neo, अगर किसी भी वर्ड में नियो और नोव आ जाए, नियो और नोव आ जाए, that is for new.
अब देखो गाइस, मैंने बोला यार मैं तो अभी नियोफाइट हूं, अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू करा है. नियोफाइट का मीन्स गाइस आई एम जस्ट अ बिगनर, नया नया हूं, राइट. अगर मैं बोलूं नोवल कोरोना वायरस, सो नोवल यानी न्यू कोरोना वायरस, राइट. एनीथिंग विच इज स्टार्टेड विद नोव एंड यू नो, मेरे को यार कमेंट सबके दिख रहे हैं ना. अगर मैं मतलब आई कैन सी द कमेंट्स ऑफ एवरीवन, है ना. वीना, आई कैन सी योर कमेंट्स यार, ठीक. चलिए अब मिसोनीस्ट. अब देखिए एंथ्रोप हम पहले ही देख चुके हैं गाइस. एंथ्रोप इज यूज फॉर मैनकाइंड. एंथ्रोप इज यूज फॉर मैनकाइंड, राइट. चलिए तो आज हम देखते हैं गाइस, ये हमारे पास क्या वर्ड है, मिसोजिनिस्ट. मिसोजिन. अब देखिए प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स एज वेल. यस, रूकी बोल सकते हैं. वेरी गुड रश्मि, ये रूकी भी बोल सकते हैं मिसोनिस्ट को. अच्छा, मिसोनिस्ट तो हेटर होगा. मिसोजिनिस्ट, हेटर ऑफ वेमेन, हेटर ऑफ वेमेन. मिसैंड्रिस्ट, हेटर ऑफ men, hater of men. Misogynist, hater of new things, hater of new things. और misanthropist, hater of mankind, right. Hitler was misanthropist. Hitler was misanthropist, the hater of mankind. चलिए रेखा, वेलकम टू दिस. यस, टायरो, ग्रीन हॉर्न, अप्रेंटिस, ये बातें करेंगे अभी हम. वेरी नाइस निशा, है ना. रूकी, टायरो, नोविस, ग्रीन हॉर्न, फ्लैजलिंग, ठीक है. देयर आर एन नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी टॉकिंग अबाउट इन द लेटर सेक्शन. अभी मैं ज्यादा सिनोनिम्स क्यों नहीं लिख रहा हूं, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड यू गाइज हाउ मच यू कैन डाइजेस्ट. एंड द सेकेंड थिंग, राइट नाउ द कंप्लीट फोकस इज ऑन root word. We are not doing any additional word because just doesn't want to give you so much at the initial stage of this vocabulary batch. Okay, तो मैं नहीं चाहता पहले दिन ही बम्बारमेंट हो जाए आपके ऊपर, ठीक है. चलिए आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़े से और वर्ड. बनाइए आंसर. फिर से मिस आ गया यार. ऐसा कुछ ना, फाइट का कोई रूट नहीं है अन्वेषा. देयर इज नो पर्टिकुलर वर्ड लाइक फाइट. वो कई बार क्वालिटी डिफाइन करता है, ठीक. आज ये जल्दी बनाइए गाइस, है ना. जल्दी जल्दी करते हैं. स्प्रिंग चिकन, वेरी नाइस देवी, वेरी नाइस नीरू. स्प्रिंग चिकन भी बोलते हैं. इफ यू आर अ स्प्रिंग चिकन इन पर्टिकुलर प्रोफेशन, अभी आप उस फील्ड में नए नए हो. स्प्रिंग चिकन, वेरी नाइस यार. अगर कोई आपको बोल रहा है स्प्रिंग चिकन, राइट, सो मेरे को लगता है उसमें क्या कहते हैं. और गाइज यू आर नॉट सपोज टू टेल मी गिव मी द मैसेज अगेन एंड अगेन. आपके मैसेजेस का काफी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, है ना. बट वी नीड टू डू स्टडी एज वेल. तो ये भी समझिएगा कि सारे मैसेज कैन नॉट बी रिप्लाई. वी कैन नॉट लुक एट ऑल द मैसेजेस. देखिए हेटर है और स्टडी का है, तो मिस हो गया हेटर और लॉजी हो गया स्टडी, राइट. तो हमारा आंसर तो बन गया डी फॉर दिल्ली. लेकिन मिस और पेड में क्या होता है. पेड का मतलब होता है गाइस चिल्ड्रन, बच्चे. पीडियाट्रिशियन, राइट. हम लोगों ने वर्ड देखा है पीडियाट्रिशियन. तो अगर मैं लूं तो मिसोपेडिस्ट होते हैं गाइस. यू हैव सीन पीपल आर गेटिंग एडवांस. उनको बच्चे नहीं चाहिए होते हैं आजकल, है ना. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट. यस मजूबी, वेट बिहाइंड द इयर्स, विल बी टॉकिंग अबाउट दीज वर्ड्स एज वेल. तो गाइस जैसे अगर आज के लोग में क्या है, पीपल आर एडवांस. 2 साल बेबी नहीं करा, 4 साल बेबी नहीं करा. एंड सम ऑफ देम इवन आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे वांट टू एंजॉय देयर पर्सनल लाइफ एंड ऑल दैट. सो आई कैन कॉल देम एज मिसोपेडिस्ट. मिसोपेडिस्ट मतलब जिनको बच्चों से नफरत हो, या बच्चे करना ना चाहते हो, या बेबी वो चाह ही ना रहे हो लाइफ में, ठीक है, उनको मिसोपेडिस्ट. पेटर मतलब होता है फादर. पेटर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, पैट्रियार्की सिस्टम सुना है आपने, फादर. और मेटर का मतलब होता है दोस्तों मदर. मेटर का मतलब क्या होता है, मदर, राइट. तो ये ध्यान रखिएगा, मेटर का मतलब मदर. तो मिसोमेटर हो गया हेटर ऑफ मदर. मिसोपेटर हो गया हेटर ऑफ फादर. मिसोपेडिस्ट हो गया हेटर ऑफ चिल्ड्रन. और मिसोलॉजिस्ट हो गया विच वी आर नॉट सपोज टू बी, ठीक है,
उसको हम बोलेंगे हेटर ऑफ स्टडी। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए गाइस। आजिए जल्दी बनाइए गाइस। हेटर ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज, लेट्स डू इट फास्ट गाइस, ट्राई टू गेट द आइडिया। 10 वर्ड्स आज हम करेंगे इसमें, एंड बिकॉज हमारी क्लास भी वी स्टार्टेड लेट एंड वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन एट द इनिशियल स्टेज, तो धीरे धीरे 1 घंटे से ज्यादा वो कैब हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। वी विल बी स्टार्टिंग ओनली 1 hour ऑफ वो कैब, दैट विल बी सफिशिएंट। मुझे भी पता है रीडिंग ओनली वोकैबुलरी फॉर एन आवर can be an issue. Sometime you might not get interest in that, or sometime you might find it quite boring. Okay, so although I'll try my level best, the class is not monotonous, or it is not something which you may not enjoy, or we are not getting the cliche things from my side. तो मैं चाहूंगा कि आपको वो क्लीशे, वो पुरानी घिसी पिटी बातें ना मिले। I should give you something new. We should keep on adding new things in this batch. ठीक है, और n number of words पे हम काम करें। चलिए देखिए, इसमें एक वर्ड जो है वो हमारे पास है गैम। गैम का मतलब होता है गाइस मैरिज। गैम का मतलब क्या होता है? मैरिज। आर्की और क्रेसी, आर्की एंड द क्रेसी, दैट इज यूज फॉर रूल। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन 26 तारीख को एनार्की फैल गई थी। There was complete anarchy on the 26th of December in Delhi, where the Kisan came into Delhi with their trucks and the tractors, and creating a lot of ruckus and the pandemonium in the class, or sorry, pandemonium in Delhi. So मुझे लगता है वो एक क्या थे, वो anarchist थे, right? Anarchy, आर्की गाइस, अगर ए लगा दूंगा तो नो आर्की, है ना, ध्यान रखना, ऐसे ही वर्ड बनते हैं। Archy is a rule, anarchy is no rule. There was complete anarchy in Delhi on 26th of January. Everyone saw that, someone, unfurled the flag, which is a prerogative of a prime minister. ठीक है, अगर देखिए किसी ने जाके वहां पे फ्लैग अनफोल्ड कर दिया, which is completely a prerogative of a prime minister. It should not be done by anyone else. But some people really trying to create the pandemonium, और कहीं ना कहीं बहुत हल्ला गुल्ला एनार्की मच गया था। नाउ दोस पीपल आर बीइंग कॉट बाय द गवर्नमेंट। चलिए, तो गैम का मतलब हो गया मैरिज। गैम मीन्स मैरिज। और गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन लाइन्स एज वेल। पेंडीमोनियम, पेंडीमोनियम मतलब हल्ला गुल्ला। पेंडीमोनियम, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा और हल्ला गुल्ला मचा था। शोर शराबा, रकस बोल सकते हो इसको। देयर वॉज कंप्लीट रकस ऑन द 26th ऑफ बहुत ज्यादा हालात बुरे थे। यस, दे वर नॉट फार्मर, यू कैन से दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, डोंट टेक इट इन अ पॉलिटिकल वे, दे मे नॉट बी द फार्मर, दे वर सम हुलीगन्स। वो क्या थे? वो कुछ ना कुछ तो हुलीगन्स थे। हुलीगन्स मतलब जो क्या बोलते हैं, शरारती तत्व। दे वर द हुडलम्स। They were some hooligans and the hoodworms. They were not the real farmer, and completely agree to this. ठीक है, I completely agree to this. They were not the real farmer. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वो रियल फार्मर नहीं थे। They were the hooligans of the political party. They were the hoodlums of the political party. यानी गुंडे। हूलीगन्स और हुडलम क्या होता है गाइस? ये होते हैं गुंडे, राइट? रफियंस इनको बोल सकते, यू कैन कॉल देम एज गुंडे, राइट? यस, सलमान खान इज मिसोगमिस्ट. सलमान इज नॉट गेटिंग मैरिड, और प्रॉब्ली ही इज नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड. ही सीम्स टू बी अ मिसोगमिस्ट. Anushka Dubey, you are saying your brother is misogynist. You need to convince your brother to get married. चलिए, गैम का मतलब हो गया गाइस मैरिज। आर्की का मतलब हो गया गाइस क्या? आर्की और क्रेसी, दैट इज रूल, दैट इज रूल। और गाइस एक चीज याद रखना, वी लर्न द वर्ड कैनाइन फॉर डॉग, देर इज अनदर रूट साइनो, देर इज अनदर रूट साइनो फॉर डॉग्स। दोनों का मतलब डॉग्स होता है, ये ध्यान रखना। देर इज अनदर रूट फॉर डॉग, दैट इज साइनो। यस, रफियन अच्छा वर्ड है संतोष।
चलिए, तो साइनो जो है गाइस, वो आपका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है डॉग्स, राइट। मेरे को यार साइनोफोबिया है गाइस। जैसे मैं गली से गुजरता हूं और मेरे सामने दो चार कुत्ते होते, आई जस्ट टेक बैक, नो, आई ट्राई नॉट टू गो फ्रॉम दैट स्ट्रीट। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस गली में ना जाऊं जहां पे 3-4 डॉगी होते हैं, बिकॉज मुझे लगता है काट लिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। सो आई एम सफरिंग फ्रॉम साइनोफोबिया। मेरे को किससे डर लगता है गाइज? डॉग का फियर, राइट। आई एम सफरिंग फ्रॉम द फियर ऑफ डॉग्स, राइट। तो साइनो भी याद रखना, कैनाइन भी याद रखना, दोनों का मतलब होता है डॉग्स, राइट। चलिए, तो हमने ये तो देख ही लिया गाइस। मिसोसोफ का मतलब विजडम, यानी जिसको क्या कहते हैं, विजडम से नफरत हो, ठीक है, उसको बोल सकते हैं मिसोसोफिस्ट। साइनिस्ट हो गया डॉग से नफरत करने वाला। मिसार्किस्ट हो गया गाइस जो इसको आर्की, यानी जिसको शासन से नफरत हो, उसको बोल सकते हैं। और मिसोगमिस्ट हो गया हेटर ऑफ मैरिज। पर्पस गाइस रूट है, ये ध्यान रखिएगा। द पर्पस इज रूट, ओके। चारों वर्ड रटना नहीं है, इनमें जो रूट था वो समझ लिया, बस हमने ये ध्यान रखना है ना। साइनी हो गया ये। हाइड्रोफोबिया पानी का होता है, हाइड्रो जो होता है वो पानी का होता है नीरू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आ जाइए गाइस जल्दी। पहले बेसिक कवर कर रहे हैं हम लोग। काइंड और जेंटल डिस्पोजिशन, न्यूट्रल और हार्मलेस। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। अगर इंग्लिश में कभी भी दोस्तों बैनी वर्ड आ जाए, इंग्लिश में इफ यू सी द वर्ड बैनी, माई नेफ्यू अर्नव इज साइन, अरे नो ऐसे मत बोलो घनश्याम, ये लाइन ऐसे बोला जाएगा, माई नेफ्यू अर्नव इज इज प्रॉब्ली हैविंग साइनोफोबिया। आपका अर्नव जो साइनोफोबिया नहीं है, ही इज हैविंग साइनोफोबिया। फिलोसाइनिस्ट बोल सकते हो, फिलोसाइनिस्ट के बदले आप, मैं कहूंगा कैनिनोफाइल आप ज्यादा यूज करें, ठीक है, वी कैन यूज द कैनिनोफाइल। चले गाइस ऐसा करते हैं यार, आज तो मैं लेट शुरू हुआ था तो एक 1 आवर हो भी गया है। विल स्टार्ट फ्रॉम द 9 इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टार्ट फ्रॉम, और ये लंबा जाएगा, 100-200 तक जाएगा ऐसे। सो जहां पर हम चाहेंगे 1 घंटा होगा उसी दिन एंड कर देंगे, विल नॉट क्रॉस 1 आवर, क्योंकि आप प्री एंगेज हैं, आप अपनी जगह भी बहुत फंसे पड़े हैं। सो आई विल नॉट बी टेकिंग मोर देन एन आवर। तो मेरे ख्याल से बस एक वर्ड में लास्ट बता रहा हूं आज, एंड द नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th एंड विल बी मूविंग टूवर्ड्स दोस 9th से आगे बढ़ेंगे। और एटलीस्ट कोशिश करेंगे हम कि कम से कम 50-60 वर्ड्स को हम डिस्कस कर ले विद द डिस्कशन, और 5-7 वर्ड तो इधर उधर से आ जाएंगे, जैसे हंकी डोरी है ना, हंकी डोरी आ गया, हुडलम्स आ गया है ना, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड, हुडलम्स, पेंडिमोनियम, सो ऐसे वर्ड्स भी विल ट्राई टू कीप ऑन गेटिंग। चलिए देखिए, कोई भी चीज जो नुकसान ना पहुंचाए वो होती है बिनाइन। कैंसर वॉज इन बिनाइन स्टेज, कैंसर वॉज इन बिनाइन स्टेज। बिनाइन स्टेज का मतलब द कैंसर वॉज नॉट डेंजरस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कैंसर वॉज डिटेक्टेड बट दैट वॉज इन बिनाइन स्टेज। बिनाइन का मतलब जो नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। बैनी गुड हो गया गाइस, बैनी मतलब गुड होता है, और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। बैनी का मतलब गुड और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, राइट। बैनी का मतलब गुड और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। तो बैनी डिक्शन होता है व्हेन समवन इज स्पीकिंग गुड फॉर यू, जब आपको कोई अच्छा बोल रहा हो। इसको हम बोलते हैं आशीर्वाद, इसको हम बोलते हैं आशीर्वाद, यानी किसी को आशीर्वाद देना, ठीक है। और किसी को एक, अगर यार क्लास टाइमिंग इज 1 o'clock, क्लास टाइमिंग इज 1 o'clock, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 1 o'clock रहेगी, और ये रहेगी TTS। हम हर सेकंड सैटरडे को गैप रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यानी हर सेकंड सैटरडे में हम क्लास नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना, राइट। चलिए, बैनिजन जो होता है वो भी बेनिडिक्शन का ही सिनोनिम है। वी नीड द बैनिजन ऑफ आवर एल्डर्स, वी नीड द बेनिडिक्शन ऑफ आवर एल्डर्स। तो बैनी गुड होता है,
और देखो अगर आप बैनी का उल्टा बनाना चाहो तो मैल लगा दो बस, है ना, आगे वर्ड आएंगे, आगे वर्ड आएंगे. सो आई बी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट बेनिडिक्शन का मैलिडिक्शन, बेनीवोलेंट का मैलीवोलेंट, राइट, बिनाइन का मेलाइन, राइट, ये ध्यान रखना. सो वी कैन सिंपली रिप्लेस द वर्ड बाय एडिंग द वर्ड मेल. ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा. So guys, this is a small introductory class from my side. The next, like probably in the next class, which is going to happen on Thursday. So start karenge guys, and I have started it with a bang, and I would be expecting a huge response from your side. Or please spread this batch to other people. They can also avail the benefit out of it, and I'm going to share everything whatever I know in this particular batch. Okay. So thank you so much for giving your full support. I got full support in the last batch as well for the grammar, and I would be expecting the same support in this vocabulary batch as well. So thank you so much for like believing in me and purchasing this particular batch. I definitely gonna give you the reimbursement of your money in terms of knowledge, right? So आज इतना ही रखते हैं guys. This is all from my side. Thank you so much. और कुछ कहना है तो कह सकते हैं. I am now standing in front of you for 2-3 minutes, and if you want to say something, I hope you learned something out of it guys. कुछ words सीखने को मिल गए होंगे हमें, है ना. Sir, give answer once. Okay, चलिए, thank you so much. My aunt was suffering by benign cancer, but now she's well. That's good, yeah. That's good. That's a good news that she's well now. चलिए guys, this is a small session, and we'll keep session only for an hour. और is this class on an alternative day? Yes, ये class alternative पे रहेगी. Please schedule check कर लीजिएगा on the app. ठीक है, और spread this batch to other people who can like really want to have the sound vocabulary.